हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं जैसे कि बिजनेस लॉ। पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द रूल नो सेलर कैन गिव टू द बायर ऑफ द गुड्स अ बेटर टाइटल दैट ही बॉट हिमसेल्फ एज। एक सेलर कोई भी बेटर टाइटल गुड्स का नहीं दे सकता किसी भी बायर को जो उसके पास है। आर देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल? क्या इसके कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं? देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। द लैटिन मैक्सिम नेमो quod that quod now have it consider the general rule of the law as to transfer of title। इसका मतलब क्या हुआ? Nobody can give what he himself has not got। जो भी चीज उसके पास है ही नहीं वो दे ही नहीं सकता है। When this maxim is applied to the sale of goods, the sale of goods पे ही apply करा गया। It means no seller can give the buyer ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। जो उसके पास बेटर टाइटल है ना वो बायर को नहीं मिल सकता है। इससे बेटर टाइटल नहीं दे सकता है वो बायर को। Therefore a thief cannot make any person the owner of articles stated by him even though the buyer pays the full price। अगर बायर फुल प्राइस भी पे कर देगा तो भी बेटर टाइटल नहीं जाएगा बिकॉज वो चोरी के गुड्स हैं। The general rule is that only an owner of this authorized agent can transfer the goods to title। ये जनरल नोटेशन यही है, जो एक्चुअल में ओनर है ना किसी गुड्स का वही सबसे बेस्ट टाइटल ट्रांसफर कर सकता है गुड्स का किसी बायर को। This rule has been enumerated in section 27 which he reads that where the goods are sold by the person who is not the owner। कोई भी जनरल गुड्स बेच रहा है जो कि ओनर नहीं है and who does not sell them under the authority or with the consent of the others। किसी दूसरे ओनर के कंसेंट के बेसिस पे वो सामान को नहीं बेचता है। the buyer acquires no better title of the goods than the seller had। बायर के पास कोई भी बेटर टाइटल नहीं होगा जितना उस सेलर के पास है। This general rule however is subject to the provision of the act and are therefore time being for the force for टाइम बीइंग इन फोर्स के टाइम की बीइंग पे आ जाता है ये। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं भाई? सेल ऑफ द पर्सन नॉट द ओनर और द टाइटल बाय द एस्टॉपल सेक्शन 27 के अंदर ये डिफाइन है। When the owner by his conduct or by an act or the omission leads the buyer to believe that the seller has the authority to sell, seller के पास authority है सामान बेचने की, and induces the buyer to buy the goods और buyer को induce करता है कि वो goods को खरीद सकता है, he shall be stopped from denying the fact of the what is authority of the seller। seller की authority भाई क्या होनी चाहिए? The buyer in such a case gets a better title than that of seller। buyer के पास एक better title हो सकता है seller के basis के ऊपर। Example: A tells B that within the hearing of C that A is the owner of the certain goods का owner है A, which in fact belongs to the C, जो C के टाइटल के अंदर है अभी। C does not contradict A's statement। C ने कोई भी A की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा है। After some time B ने खरीद लिया उन गुड्स को A से। The title of the B will be the better than that of the B। B का टाइटल ऑब्वियसली बात है अच्छा होगा जब उसने खरीद ही लिया तो। And C will be precluded from disputing the B's title of the goods। अब C कोई भी डिस्प्यूट पैदा नहीं कर सकता B के टाइटल के बेसिस पे। Sale by the mercantile agent provision 27। A mercantile agent is one who is the customary course of the business। He is the agent authority either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale। सेल के पर्पस पे जब किसी एजेंट को रख दिया जाता है गुड्स को बेचने के लिए। और buy goods और raise the money for the security of the goods section 2 subsection 9 के अंदर ये डिफाइन है। The buyer of the goods on the mercantile agent who has no authority from the principal to sell gets the good title of the goods if। अगर गुड्स टाइटल कब मिलता है? The agent is in the possession of the goods। जब एजेंट पोजीशन के अंदर है गुड्स के। और the documents of the title of the goods is the consent of the owners consent से डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल के हैं वो किसके पास है भाई? एजेंट के पास है। The agent sell the goods while acting in the ordinary course of the business at the mercantile agent के basis पे एजेंट गुड्स को बेच देता है। The buyer acts in the good faith। buyer एक good faith के अंदर एक्ट कर रहा है। The buyer has no time the time of the contract of the sale notice the agent has no authority to sell। buyer के पास कोई भी टाइम नहीं था ये देखने के लिए कि भाई एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की। तो ये एक्सेप्शन है इस रूल का। एग्जाम्पल: F the owner of the car। F एक ओनर है कार का। Delivered it to H। H को उसने डिलीवर कर दिया भाई गुड्स को।
अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर द सेल टू नॉट लेस देन यूरोस 575 यूरोस से नीचे वो नहीं बेच सकता था इसको। एच सोल्ड द कार ऑफ 140 टू के 140 यूरोस में उसने के को बेच दी वो कार को। Who bought it in the good faith, जो अच्छे फेथ में उसको खरीद भी लिया विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड, उसको पता ही नहीं था ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है। एच मिस अप्रोप्रिएट द मनी, एच ने क्या करा, मिस अप्रोप्रिएट करा मनी को। एफ स्यू टू रिकवर द कार फ्रॉम द के, एस ने किसके ऊपर स्यू करा, रिकवर करने के लिए के ऊपर कार को। हेल्ड एज द एच इट वाज इन द पोजीशन ऑफ द कार विद द एफ कंसेंट, एफ के कंसेंट के बेसिस पे एच पोजीशन पे था कार के फॉर द पर्पस ऑफ द सेल, के ऑब्टेन द गुड टाइटल ऑफ द कार, के को ऑब्टेन करेगा गुड टाइटल, मतलब वो स्यूज का वेस्ट है, कोई डैमेजेस उसको नहीं मिलेंगे। Said by one of the several joint owners, section 28 के अंदर डिफाइन है, if one of the several joint owners who is in the sole possession of the goods, so जो एक sole possession के अंदर है किसी भी goods के, by the permission of the other co-owners sell the goods, जब उस goods को बेच देते हैं, a buyer of the good faith of those goods gets a good title of the goods, goods का बहुत ही अच्छा टाइटल उनको मिल जाएगा। सेल बाय अ पर्सन इन द पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सेल कैसे ट्रीट करता है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 29 के अंदर डिफाइन है, व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन देयर पोजीशन, जो सेलर कोई भी ऑब्टेन कर ले अपनी पोजीशन को अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो बट द कॉन्ट्रैक्ट had no resident at the time of the sale, the buyer acquire a good title to the goods, goods का एक बहुत ही अच्छा टाइटल बायर को मिल जाएगा, provided that it buys them a good faith के अंदर वो उनको खरीदे and without the notice of sellers or defect of the title, defect जो भी है टाइटल का वो सेलर को फर्क ही नहीं पड़े। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, A purchases a piano from the B by the fraud, B से उसने परचेज कर लिया पियानो, B ने फ्रॉड किया। A has a voidable title of the goods, A के पास voidable का टाइटल है obviously goods का, but B resigns the contract, A sells the piano to C, A ने C को बेच दिया पियानो। Who buys in the good faith, उसने अच्छी तरह good faith के अंदर उसको खरीदा, in ignorance of the fraud, C gets the good title, C को बहुत ही अच्छा टाइटल मिल जाएगा इसके अंदर। If the contract under which the seller obtain a good is void, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर वही गुड्स ऑब्टेन कर देता है जो कि void है, even in the innocent buyer of the goods from such seller does not acquire a title of the goods, तो कोई innocent buyer को टाइटल उस चीज का नहीं मिलेगा। Sale by the seller in the possession after the sale, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 के अंदर डिफाइन है, when the seller having sold goods, जब सेलर कोई भी गुड्स बेच देता है, continues to be in the possession of the goods, वो कंटिन्यू करेगा गुड्स की पोजीशन के अंदर, और if the documents of the title of the goods and the seller and sells them either himself or through a mercantile agent, जब एजेंट के थ्रू या फिर गुड्स को वो सेल करें, तो वो पर्सन वो buys them in the good faith, जो कि गुड फेथ के अंदर उनको खरीदे without notice of the previous sale के बिना किसी नोटिस पे आए, the buyer gets the good title, बायर को एक बहुत ही अच्छा टाइटल मिल जाएगा यहाँ पे। एग्जांपल, A sell the certain goods to B, A ने गुड्स को बेचा B को and promise to deliver the goods on the next day, और नेक्स्ट डे पे उन्होंने प्रॉमिस करा कि गुड्स हम आपको डिलीवर कर देंगे। Before A सेल करने से पहले डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू C who buys them in the good faith, डिलीवरी किसको हो गई, C को हो गई जो उसने बहुत ही अच्छे फेथ में बाय करा, and without a notice of the prior sale to the B, B की प्रायर सेल जो कर चुका था उसके बिना नोटिस के उसने C को बेच दिया। C gets the good title of the goods notwithstanding, C को एक गुड टाइटल मिलेगा बिकॉज़ उसको पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। And before he purchased pass to the B is only remedy, in case of A, इन किस केस के अंदर B को सिर्फ रेमेडी मिलेगी जो ब्रीच करा A ने। Said by the buyer to the possession after having bought or agreed to buy the goods, section 30 subsection 2 के अंदर डिफाइन है, where a person having brought or agreed to buy the goods obtained with the consent of the seller, seller की consent से जब कोई भी goods वो buy कर लेता है, possession of the goods or the documents of the title of the goods and sells, then either himself or through an agent, जब वो या तो खुद या फिर किसी एजेंट के थ्रू वो उन सब चीजों को बेच देता है, the buyer who acts in the good faith, जो good faith के अंदर एक्ट कर रहा है, and without the notice of any lien or the owners of the right of the owner original seller in respect of the goods gets a good title, उसको एक बहुत ही अच्छा टाइटल वहां पे मिल जाएगा। एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं आया तो समझ में। A bought some furniture to hire purchase, A ने कुछ खरीदा फर्नीचर हायर परचेज के ऊपर, the ownership of to the pass to him on the payment of the last installment तक जब तक वो पेमेंट नहीं करता जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। A sold the furniture to B before paying the last installment, A ने B को वो सामान बेच दिया इंस्टॉलमेंट बिना पे करे। B purchased the furniture bona fide, B ने परचेज कर लिया फर्नीचर। held B having bought in the good faith had obtained a good title of the furniture, उसको एक बहुत ही अच्छा टाइटल मिल गया उस फर्नीचर का।
A person who obtained the goods under the hire purchase agreement is not unnecessary a person who has bought or agreed to buy the goods. It if he has merely an option to buy, अगर उसके पास ऑप्शन है बाय करने का, he cannot sell the goods with good title or the transfer. वो सेल नहीं कर सकता जब तक उसको गुड टाइटल नहीं मिल जाता. But if he is under the obligation to buy, he can give the good title. अगर वो खरीद सकता है उसको तो वो गुड टाइटल भी आगे ट्रांसफर कर सकता है. स्टेट सेट बाय एन अनपेड सेलर के ऊपर भाई क्या स्टेट सेट लगता है. सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर ये डिफाइन है. वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज लाइन टू लीन और द स्टॉपेज इन द ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, जब वो गुड्स को रीसेल कर देता है, द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. बायर के पास एक बहुत अच्छा टाइटल आ जाता है ओरिजिनल बायर से भी. एक्सेप्शन है हमारे पास कुछ इस एक्ट के. क्या एक्सेप्शन है? सेड बाय द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई लॉस्ट गुड्स किसी को मिल जाता है तो. सेड बाय द पाउनी ऑफ द प्लेज अंडर द सर्कमस्टांसेस सेक्शन 37 76 के अंदर डिफाइन है. ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी है अगर. इन सब केसेस के अंदर अगर सेलर इवन दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स सेल्स द गुड्स, द बायर गेट्स द गुड टाइटल. इन सब केसेस के अंदर बायर को एक अच्छा टाइटल मिल जाता है. State on the market over in England, a person who buys the goods in the market over obtain a good title of the goods. उसको good title मिल जाएगा. Market over means a open public in the legal constituted market. Open market को ही बोलते हैं market open को. Where goods are sold in the market over, the buyer acquires a good title to them. Buyer को एक अच्छा title मिल जाएगा irrespective of the seller of the goods title provided. The goods are sold in accordance with the uses of the market. Market के uses के according goods को बेचा जा रहा है. And the buyer bought the goods in the good faith and without the notice of the seller. सेलर के नोटिस के बिना बायर उन सब चीजों को खरीद रहा है और टाइटल उनको गुड्स का मिल रहा है. बहुत अच्छा. तो ये हमने बात करी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से गुड्स के टाइटल को किस तरीके से ट्रांसफर करा जाता है, पोजेशन और ओनरशिप का क्या मतलब होता है गुड्स के, इन सब चीजों के बारे में. थैंक यू सो मच.